My name is Srishti Deshmukh Gowda and I am an IAS officer of 2019 batch. Recently, I came out with a book on answer writing named the Answer Writing Manual. Answer writing for UPSC CSE examination is a very important thing, and this video is I will be sharing my own strategies and tips about answer writing. Whatever I have learned in the course of my preparation, I will be sharing it with you. I will also give you a glimpse of what all is included in the book Answer Writing Manual. So in the course of my preparation, I realized that UPSC answer writing is the most important thing which will affect your rank and your service. If you see the scores, the mains is the marks along with the interview which is added in the final score. So in order to secure a very good rank and a very good service, you have to be good in answer writing. When I was preparing, prelims was a part which I used to be scared about. But answer writing, I had practiced so much. I tried to use all the blogs, the books, and take help from mentors and kept improving it day by day. So I had a bit of confidence in that part. In my very first attempt, in the GS marks, I was able to secure 470, which was the highest for that year. So in this video, I will be sharing with you those tips and strategies which I felt would be game changing for all of you. We face a lot of difficulties because we see resources, what books to read, we also see what magazines to refer to, the newspapers to refer to. But answer writing is a part where we are unsure how to start. The beginner's mental block is very much there in answer writing. Now, how to deal with that? A lot of aspirants also in the course of the past 2 or 3 years have asked me questions and queries regarding that. So I will try to share with you whatever I have learned in the coming time. So to start, why is answer writing important? As I told you that the final rank of yours will be decided by your main score, and mains is all about what you write in those 9 papers. So we are supposed to give 9 papers, 4 GS papers, 2 papers from the optional, 1 essay paper and 2 language papers. जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा वो बनेगा 4 GS के पेपर्स, 2 ऑप्शनल के पेपर्स और आपका 1 essay का पेपर. इनका टोटल सम आपका फाइनल मेंस का स्कोर बनता है. अब सबसे पहली बात, शुरू कैसे करें? कभी भी आपके पहले दिन ऑफ प्रेपरेशन से हमें आंसर राइटिंग शुरू नहीं करनी है. कई बार हमें लगता है कि अब हम राइटिंग शुरू मतलब हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो आंसर राइटिंग भी साथ में शुरू कर दें. ऐसा नहीं कर सकते हैं. कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करना आवश्यक है जिसके पहले हम आंसर लिखेंगे. पहली चीज़ है, नो द सिलेबस. यू शुड नो व्हाट द सिलेबस इज़ एग्जैक्टली. उसका एक प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लीजिए और उसका थरो एनालिसिस करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए. GS 1, 2, 3, 4 एक बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में सारे सिलेबस UPSC द्वारा दिए गए हैं. उसको अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए उसको लर्न कर लें ताकि आपके टॉप ऑफ द हेड में रहे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे. एक चीज़ होगी सिलेबस को जानना. दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना कि एग्जैक्टली UPSC अपने पेपर्स में क्या पूछता है. व्हाट इज़ इट दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली you should be reading the previous year papers every day at least about half an hour. और आप पिछले 5 साल के UPSC मेंस के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं. When you read each and every question, you will know कि उस टॉपिक में से कैसे हर साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टॉपिक एक ही रहता है बट पूछने का तरीका और करंट अफेयर से उसको रिलेट करके एक नया क्वेश्चन UPSC हमारे सामने रखता है. तो ये हो गई सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें आंसर राइटिंग करने के पहले ज़रूर करनी चाहिए. और थर्ड थिंग है
बिल्डिंग योर नॉलेज बेस। इसका मतलब किसी भी टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ें, उसको जानें। एटलीस्ट हमें फाउंडेशन NCERTs तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रीडिंग द फाउंडेशन NCERTs, प्लीज़ डू नॉट जंप इनटू आंसर राइटिंग। अलॉन्ग विद NCERTs, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द स्टैंडर्ड बुक्स। हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हों या आप तीनों चीज़ें साथ में कर रहे हों, उसके बाद ही प्लीज़ देन ओनली अटेम्प्ट राइटिंग एन आंसर। सो दिस वाज द प्री रेक्विजिट। नेक्स्ट नाउ इसी प्रकार मैंने अपनी किताब में भी इसके बाद चारों GS पेपर्स को किस तरह से अप्रोच करना है प्रेपरेशन में, वो बताया है। It's almost like the better your preparation for general studies will be, the more organized your notes of the preparation will be, the better your answers will be. This is because the better you are studying and consolidating all your notes, जितना अच्छे तरीके से आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक साथ लिखते जा रहे हैं, उतना ही बेहतर तरीके से नॉलेज एक साथ कंसोलिडेट होता जाएगा और आप उसके आंसर सही तरीके से लिख पाएंगे। लेट्स टेक अप द जनरल स्टडीज पेपर 1. Paper 1 is about history, geography, some topics of society. Now, all of this is mostly on the static side of the syllabus. Static means जो facts होते हैं, definitions होती हैं, या जो historical चीज़ें होती हैं, और geographical जो इतनी ज़्यादा बदलती नहीं हैं। तो static portion थोड़ा हमारा general studies paper 1 में ज़्यादा रहता है। उसमें Indian National Freedom Movement के बारे में भी पढ़ना है and other things. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे हम कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमेशा जो हर साल आपको उस पेपर में ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि एक है थीम रोल ऑफ गांधी जी। रोल ऑफ गांधी जी सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो हमें ऐसे कुछ टॉपिक्स थीम्स आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए जिसमें हर साल सवाल आते हों। उनके अगर हम अच्छे से फ्रेमवर्क्स रेडी कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स सारे ले लेते हैं, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम अच्छे से एक जगह पे नोट कर लेते हैं, तो वो वाला हमारा आंसर बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। दिस इज़ बिकॉज यू वुड बी प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क अहेड ऑफ द एग्ज़ाम। तो हर GS पेपर में से ऐसे कुछ थीम्स को निकाल लीजिए। GS पेपर 1 में रीजनलिज्म एक और ऐसा थीम है जो हर बार पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन ऐसा थीम है जो हर बार पूछा जाने वाला है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ भी मिलता है तो उसको आप ज़रूर अपने पास नोट कर लें और स्टैटिक के नोट्स के साथ उस करंट फैक्ट को मिक्स करके फिर जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो वो एक कंप्लीट और एक रेलेवेंट आंसर निकल कर। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। वन ऑफ देम इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़, हाउ द रोल ऑफ वुमेन इज़ देयर इम्पॉर्टेंट, हाउ द लोकल पीपल गेट अ पावर इन डिटरमाइनिंग देयर ओन गवर्नमेंट. दिस थीम इज़ आस्क्ड एवरी ईयर. So why not study the 73rd and 74th constitutional amendment and look at all its clauses? ऐसे टॉपिक्स को हमें डिटेल में जा करके पहले ही प्रिपेयर कर लेना अच्छा होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार 15 मार्कर्स में आपसे पूछा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कैसे महिलाएं, स्पेशली women based सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर हेल्पिंग चेंज द लाइव्स ऑफ पुअर women, how it is helping in eradicating poverty and hunger. These are the themes, this is a theme which is asked every year. A major part of the GS paper 2 is international relations. If you look at the current affairs of right now, we had the Russia-Ukraine thing going on. Now this thing is one of the most important for the mains examination this year. Try to find out what was the historical relations of both the countries. How are other countries aligning with them? What are the actions they are taking? How do you compare it with the international policy of the international organizations like the United Nations, etc.? Second thing, our Prime Minister recently attended the G7 summit. How is the G7 summit important? What are the different stakeholders who are a part of that summit? And how will it impact the international world-based order? ये सब चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। हम ये बात सोचते हैं कि हम बुक्स तो पढ़ रहे हैं, बट हम कैसे करंट अफेयर्स को उसके साथ जोड़ें ताकि हमारा जो आंसर निकल के आए वो एकदम कंटेम्प्रेरी हो और एकदम रेलेवेंट हो।
After GS2, let's move on to GS3. The paper GS3 is about technology, it is about agriculture, and it is about a lot of small topics. One interesting thing about GS3 आप देखेंगे, जो list of topics है syllabus की, often हमारा जो question paper है वो उसी list of topics को कई बार बिल्कुल ऐसा लगता है कि copy है, बिल्कुल series is almost similar to that. So the initial questions would be about food processing industries, how the food processing industries are important, what are the impediments, supply chain management कैसे करना चाहिए. Then it will be about technology, क्या recent technologies आई हैं. सबसे important technology जो पिछले 1-2 साल में रही है न्यूज़ में वो है biotechnology. This is because of the vaccinations which are required for the COVID epidemic which we had. So GS पेपर 3 भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करंट से रिलेटेड रहता है. जितना अच्छे तरीके से आप उन टॉपिक्स को मास्टर करेंगे जो बार बार थीम्स पूछी जाती हैं और उनसे कनेक्टेड करंट अफेयर्स को अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे, उतने अच्छे आंसर्स हम लिख पाएंगे. एंड नेक्स्ट इज GS4, दैट इज़ द एथिक्स पेपर. एथिक्स पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला जो पार्ट होता है पार्ट ए, उसमें एथिक्स में कुछ कोटेशंस दिए जाते हैं, उनका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन हमसे पूछा जाता है, या कुछ की टर्म्स दिए जाते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है. ऑल दीज की टर्म्स आर देयर इन द सिलेबस and for preparing that you can take up each key term, Google it or take some notes available and find out what they exactly mean. Note down the examples which are there. Examples become very important in GS paper 4 because कोई भी ethical theory केवल theory के रूप में ही नहीं देखनी है. Practically कैसे हम उसका देख पा रहे हैं implementation, that becomes very important. तो ethics में examples ढूंढना भी बहुत important हो जाता है. The second part of the ethics paper is the case studies. Now case studies is such in which आपको कोई एक case दिया जाएगा, you might be given a role कि आप एक डॉक्टर हैं या आप एक IAS ऑफिसर हैं या आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपको एक सिचुएशन बताई जाती है कि आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं. तो इसमें हमें ना सिर्फ रोल एनालिसिस करना है पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स को पकड़ के चलेंगे, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो हम चूज़ करेंगे. हम उसमें 2-3 ऑप्शंस डेवलप करते हैं कि ये क्यों करना चाहिए या फिर ये क्यों नहीं करना चाहिए. दिस वाज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ GS पेपर्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू decoding the question. Now why is decoding a question important? This is because हम अक्सर वो लिखते हैं जो हमें आता है, बट हमें UPSC आंसर मेंस में ये लिखना है जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में, और इन दोनों में एक बहुत थिन लाइन है. टू अंडरस्टैंड दिस यू शुड बी एबल टू प्रॉपरली सी व्हाट एन एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ अ क्वेश्चन डायरेक्टिव नीड्स टू बी अंडरस्टूड. All these things have been explained in detail in my book, where I have taken each and every question directive. How is critically analyze is different from examine, how is describe different from explain. All of these things I have talked about in detail and given you a proper step-by-step format how to decode a question. By doing that, you will be able to decode any question that you face, which will make you ready to write what is exactly expected. After you decode the question, you have to be properly decoding the answer. Now there are different parts of an answer. We know the structure is intro, body and conclusion, but answer is not just about that. It is about making your presentation proper. It is about including some of the important facts, some of the important flow charts, some maps which you can supplement in your answer, which give you that 1 or 2 marks as extra. In the chapter Decoding the Answer, I have tried to include all these things, जिससे आपको एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मिलेगा कि आपके पूरे आंसर में क्या क्या ऐसी सॉल्ट जैसी चीज़ें, ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे आपको हर आंसर में 1 या 2 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकता है. ये करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम सभी एक ही जैसे सोर्स से पढ़ते हैं. हम सभी कोई एक चुनिंदा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वही सारी किताबें पढ़ते हैं. तो जब आप वो आंसर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर उस दिन 10 से 12 कॉपीज़ चेक कर रहे हैं, उनमें से आपकी आंसर शीट अलग से कैसे निकल के आएगी? वो तभी आएगी जब उसमें प्रेजेंटेशन में और आंसर कंटेंट में आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डालेंगे
जिससे आपकी आंसर कॉपी उन सभी आंसर कॉपीज़ में से थोड़ा +1 या +2 के लायक हो। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिकोडिंग द आंसर में मैंने बताई हैं। इन द बुक आई हैव ऑल्सो यूज्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस in order to properly open up the framework for you। एक Q&A एनालिसिस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिसमें पूरा डिकोडिंग द क्वेश्चन एंड डिकोडिंग द आंसर के साथ में आपको समझ में आएगा कि हर स्टेप ऑफ द आंसर को कैसे अप्रोच करना है। स्पेशली यूपीएससी का क्वेश्चन, कोई भी रैंडम अगर हम क्वेश्चन लेके करें तो इतना अच्छे से हम नहीं बता पाएंगे, बट प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस को ही लिया है जिससे प्रॉपरली मैं आपको ये बता पाऊँ कि हर क्वेश्चन के हर पार्ट को कितना वेटेज देना है, क्वेश्चन वर्ड को कैसे हैंडल करना है, और जब हम आंसर लिखते हैं उसमें प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव करना है। इन दिस ऑल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर एनालाइज्ड इन डिटेल टू गिव यू अ रियल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम। आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आंसर राइटिंग। You know, none of us can write good answers from day one। ये मान करके चलिए कि आपके पहले 50-60 आंसर तो बहुत ख़राब होने वाले हैं, बैड होने वाले हैं, एवरेज होने वाले हैं। अगर आप उन 50-60 आंसर से आगे बढ़े तभी आप पाएंगे कि आप कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लिखना शुरू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस से बिल्कुल मत पीछे हटिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली भी कर सकते हैं, डेली 2 या 3 आंसर्स लिख सकते हैं। उससे आपको एक अच्छा फ्लो मिलेगा और आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे आपके आंसर्स इम्प्रूव हो रहे हैं। आंसर के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पीयर एवेलुएशन भी कर सकते हैं। कोई सीनियर्स को अपने आंसर शेयर करके दिखा सकते हैं जो आपको बताएं कि क्या आपका आंसर सही लाइन पे लिखा जा रहा है या नहीं। मुझे टेस्ट सीरीज़ ने काफ़ी हेल्प किया क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से कुछ एक छोटा फीडबैक मिल जाता है कि उस आंसर में क्या सही तरीके से इंक्लूडेड है, क्या नहीं है। वो फीडबैक आपको आपके पूरे आंसर राइटिंग के इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा। तो प्रैक्टिस को अपने आंसर राइटिंग शेड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाइए और फिर आप देखेंगे कि कैसे अगर आप प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ लिख रहे हैं, प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके आंसर्स इम्प्रूव भी होंगे। हमारे पूरे यूपीएससी मेंस में जीएस के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है वो है एसे। एसे राइटिंग becomes very important because अपने आप पे हमें केवल 2 टॉपिक्स लिखने हैं and that is worth 250 marks। Now ऐसे राइटिंग के लिए कोई सेपरेट सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। Whatever is asked in the exam, जो भी आप टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, they are somewhere or the other related to the general studies topics। तो अगर आप जनरल स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, वही आपके ऐसे का भी फॉर्डर हो सकता है, ऐसे का सोर्स मटेरियल हो सकता है। कुछ एक थीम्स ऐसी हैं जो बार बार ऐसे में पूछी जाती हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड इश्यूज़, विमेंस इश्यूज़, देन इंटरनेशनल रिलेशंस, एग्रीकल्चर, समटाइम्स टेक्नोलॉजी। एंड नाउअडेज अगर आप देखेंगे तो पिछले 1-2 साल से फिलोसफिकल एसेज बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई कोटेशन दिया जाता है और आपसे ऐसे के रूप में उसको इलैबोरेट करने के लिए कहा जाता है। सो ऐसे को कैसे अप्रोच करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड, प्रिपरेशन कुछ सेपरेट नहीं, जो जीएस में पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़ें। कोई एक मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की योजना मैगज़ीन होती है, ऑनलाइन कुछ अच्छी वेबसाइट्स होती हैं जिनके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल द फॉर्डर यू नीड फॉर essay। The main point starts during the essay exam. How do you choose the essay topic? Choosing the essay is very important. कई बार ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यार ये टॉपिक तो बहुत ही कॉमन है, everybody will choose that. So I want to choose something very different, and you end up scoring bad marks in that. So don't do that. Choose a topic which you are confident about, which you have good material about. Apart from that, also see, do you have some additional points? Can you give some positive ending to that essay? When you have all these things, इन सब फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए फिर आप अपने ऐसे का टॉपिक चूज़ करिए। टॉपिक चूज़ करने के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स हमको देने चाहिए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हम कैसे उस ऐसे को लिखने वाले हैं, किस प्रकार उसकी प्लानिंग करने वाले हैं, ये भी एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप 10 मिनट में चॉकआउट कर पाएँ कि हमारे इंट्रोडक्शन में मेरे क्या क्या होने वाला है, कौन से आर्ग्यूमेंट्स को मैं लिखने वाली हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क देंगी जो आने वाले 1 आवर में आपको लिखते टाइम बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें कवर करने वाले हैं।
After brainstorming, you start writing the essay. You focus on the flow, you focus on how the paragraphs are connected, and all of this I have tried to include in my book in the chapter Essay Writing. One small line about philosophical essays also I like to tell. कि philosophical essay में एक single most basic factor about the selection of the topic is क्या वो समझ में आया है जो लिखा है. You know, कोई सेट फॉर्मेट, कोई फॉर्डर, आपका कोई जीएस का फॉर्डर उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे में आपको वहीं पे आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, वहीं पे देखना है दोनों पहलू कॉइन के. तो अगर हमें वहीं पे सब कुछ करना है तो टॉपिक तो समझ आना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक वाला पॉइंट मैंने बताया था, ये फिलोसफिकल ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ऐसे राइटिंग के अलावा ऑप्शनल पेपर्स जो हमारे होते हैं उनको चूज़ करने के लिए भी एक चैप्टर मैंने बुक में इंक्लूड किया है. और ब्रीफ में आपको यही बताना चाहूँगी कि ऑप्शनल का भी सिलेक्शन डे 1 से नहीं करना चाहिए. पहले आप जीएस को पढ़ लें, आप थोड़ा सा एनसीईआरटीज़ पढ़ लें, फाउंडेशन पता कर लें, देखें कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है. या तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो ग्रेजुएशन में लिया है, और अगर वो यूपीएससी के लिस्ट में ना हो तो फिर अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट सम बेसिक फाउंडेशन मटेरियल तो आप ज़रूर पढ़ें. उसके बाद ही वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको लगता है कि उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि एटलीस्ट मास्टर्स लेवल का जो सिलेबस है वो तो आपको ऑप्शनल में यूपीएससी के लिए कवर करना पड़े. इन द मेन्स, अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल्स, द लास्ट थिंग विच इज़ देयर इज़ द कंपल्सरी papers of language. One paper is English and the other is the regional language which you have to which you can choose. So I had chosen Hindi as my regional language and English as it is there. इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आपको अलग से कुछ किताब वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. What you can do is आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स को सॉल्व करके देख सकते हैं, पर सॉल्व ज़रूर करिए. पेपर्स को देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए. कई बार जैसे हिंदी हम स्कूल के बाद लिखना छोड़ चुके होते हैं, या फिर इंग्लिश को हम इतना ज़्यादा उसको अच्छे से नहीं लिख पाते हैं. तो अगर आपका माध्यम हिंदी है और इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना पड़े तो आप पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखिए और लिख करके भी देखिए, ताकि आपको एक फ़्लो आ जाए और एग्ज़ाम के दिन पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो. आफ्टर दी कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर्स, आई थिंक दैट इज़ ऑल. यूपीएससी मेंस में यही सारी चीज़ें होती हैं, 4 जीएस के पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स, ऐसे और कंपल्सरी लैंग्वेज. कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कई बार हमारे मन में आते हैं. कौन सा पेन यूज़ करना है? तो पेन तो वही यूज़ करो जो आपको तेज़ी से लिखने में मदद करे. The pen which you use for practice at your home, use the same pen for writing in the examination, and that can be anything which you feel is the best. और इसके अलावा कुछ अगर आपकी queries होंगी तो I'm going to start a blog. You can drop me your queries there and I will try कि I will answer them there. I hope that I was able to help you to give a brief idea about how to write answers, how to approach answer writing, and the reviews about the book. अगर आपने बुक देखी हो तो कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि it is helping them out, तो this gives me immense pleasure. Thank you so much to them for sharing their views कि आपको बुक अच्छी लगी और आपको ये समझ में आया कि क्लियरली कैसे आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है. बुक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखा है जिससे कोई भी बिगनर भी उसको बहुत अच्छे से अप्रोच करके समझ सकता है. And you can give me your feedback on my blog as well. So thank you so much and I wish you all the very best.